Namaskar. A very cordial welcome to one and all. So, in the extension of our Quest series, today I'll be taking up some of the core concepts and the MCQs of the economics. So, this is the second video of the budget and taxation. Some of the concepts of the budget and taxation with the help of MCQs we have covered in the last video. So, today this is the second video regarding the budget and taxation. Before that, I have a very important announcement to make. We Jokta Academy at our Shimla Center are coming up with a very exclusive batch for the allied services, because as per the sources you might see the notifications for the allied services. So keeping in view that thing, so we have come up with this allied batch, exclusive allied batch. So the batch will be started from the 8th May. आप एक dedicated video भी देखोगे more about this very soon on our YouTube platform, so you can get the more information there also. Okay, so let's get started with our first question. First question is, which of the following are direct tax in India? We have to be aware of something like this. What is this? What are the direct taxes? Okay, in the last video, as you know, we have dealt with something like taxation system. हमने अपनी last video में taxation system के बारे में देखा था, जहाँ पे we have covered the taxation systems like the proportional taxation, regressive taxation or the progressive taxation. यहाँ पे हम बात करेंगे types of the taxes. We will be dealing exclusively with the types of the taxes. देखिए, as far as India is concerned, we broadly have two type of taxes. One is the direct taxes, other one is the indirect taxes. Indirect taxes. देखिए, if I have to define this, डायरेक्ट टैक्सेस वह टैक्सेस होते हैं, वो कर होते हैं जहाँ पे यू कैनॉट शिफ्ट दी लाइबिलिटी, राइट. डायरेक्ट टैक्सेस में लाइबिलिटी किसकी होती है? जिस पे वो टैक्स लग रहा है. सो लाइबिलिटी इज डायरेक्ट, दैट इज वाई दीज टैक्सेस, सम ऑफ द टैक्सेस इन इंडिया आर नोन एज द डायरेक्ट टैक्सेस. द टैक्सेस like the income tax, one. Secondly, the wealth tax, the corporate tax, capital gains tax. ये सारे taxes किस nature के हैं? Direct taxes, right? So now coming on to this indirect taxes. Indirect taxes जहाँ पे you can shift the liability, है ना, आपकी तरफ से कोई और टैक्स को पे करता है. सो दी लाइबिलिटी इज बेसिकली शिफ्टेड. सो दिस इज नोन एज, दीज टैक्सेस आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. टैक्सेस लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं. देन यू सी यू हैव समथिंग लाइक कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटीज़ लगती है इम्पोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे. देन यू हैव समथिंग लाइक एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी लगती है आपकी प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग attracts this excise duty. So these are some of the, you have also this VAT, value added tax, ये भी होता है. These all are the indirect taxes. तो हमसे question में we have been asked that direct taxes कौन से हैं. So corporate tax, as I have told you, is the part of direct taxes. Tax on the income, that is nothing but the income tax, is also a direct tax. Then wealth tax is also the direct tax. So custom duty is the indirect tax. Excise duty, as I have told you, are the types of excise this indirect taxes. तो ये दो आपके indirect taxes हैं, indirect, and these three are the direct taxes. So your answer would be 1, 2 and 3 are the direct taxes, the rest are the indirect taxes. Okay, the next question. Which of the following rate of income tax under the new regime is not applicable as per the Finance Bill 2023? देखिए, this is a very important question. यहाँ पे we have been asked कि जो इस बार
finance bill yani budget, during the introduction of the budget, the highlight feature of the budget, this year's budget, was the change in the tax regime, है ना. हमने जो tax regime है, यानी अभी हम समझेंगे इसको अच्छे से, what is exactly the tax regime. वहाँ पे इनमें से कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट या कौन से रेट को, कौन से स्लैब को डिसरिगार्ड कर दिया गया है. दैट मीन्स दैट आउट ऑफ दिस which tax or which level of the tax will not be taken from the coming financial year. देखिए इसको हम समझेंगे. देखिए you have your income, you are earning some kind of income. देखिए हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की जो इनकम अर्न करता है दैट इज़ टैक्स्ड. हमने अभी देखा दैट वहाँ पे दैट विल बी टैक्स्ड थ्रू दी इनकम टैक्स, राइट. तो आपकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा उसको वी विल डायरेक्टली कॉल इट दी इनकम टैक्स. दैट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है. For that we need to have some mechanism, we need to have some slabs, or we need to have some regimes that according to which your income will be taxed. हम समझेंगे इसको. देखिए we have something like old tax regime, यानी आपकी जो इनकम टैक्स होती थी, so first way to tax your income is old tax regime. देखिए होता क्या था, if your income is up to 2.5 lakh, आपकी इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ओल्ड टैक्स regime, if your income is between 2 lakh to 2.5 lakh to 5 lakh, you will have to give the income tax of 5%, right? And if your income is somewhere between 5 to 10 lakh, you have to give the income tax of 20%. And if your income is above 10 lakh, it is somewhere about 30%, right? So these were the tax slabs we had earlier. ठीक है जी. इस तरीके से देश में सभी लोगों की इनकम को टैक्स किया जा रहा था, राइट. But in the year 2021, the finance minister came up with new regime of income tax. यानी अब जो इनकम टैक्स देने का तरीका था, जो ये ओल्ड regime के अकॉर्डिंग था, उसको हमने चेंज कर दिया. दैट मीन्स चेंज नहीं किया, एक्चुअली द ऑप्शन वॉज क्रिएटेड. आपकी इनकम है लेट अस से, देखिए इसको हम थोड़ा सा समझेंगे. आप यू कैन नॉट डायरेक्टली से दैट लेट अस से you have the income of 12 lakh. तो हम एक्चुअली इसको कैसे समझते हैं कि ये कहाँ पे आएगा, दैट इट इज़ अबव 10 lakh, दैट मीन्स योर इनकम विल बी टैक्स्ड लाइक दिस 30%. नो, देखिए 12 लाख को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे. 12 लाख का हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड regime अप टू 2.5 लाख यू डू नॉट हैव टू गिव एनी इनकम टैक्स, इट इज़ नील. यानी आउट ऑफ योर 12 लाख फर्स्ट 2.5 लाख will be excluded from the income tax. फिर जो आपका अगला 2.5 लाख है, यानी इट इज़ 2.5 लाख टू 5 लाख, यानी इसके बीच का डिफरेंस इज 2.5 लैक्स. तो अगला आपका जो 2.5 लाख बचता है इनकम का होता है, उसको हम टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 5%, राइट. अगला 5 लाख मीन्स इसके हिसाब से उसको हम करेंगे टैक्स विद 20%. फिर अबव 10 लाख your income is only 2 lakh, so 2 लाख पे लग जाएगा कितना, 30 lakh. So finally your income will be taxed like this. This was the regime that was running, right? तो 2021 में हम एक नया टैक्स regime लेके आए. पहले तो हमने क्या बोला कि आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना. समझिए इसे, आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना. So and the slabs that the government has decided was, देखिए अप टू 2.5 लाख योर टैक्स विल बी नील, कोई टैक्स नहीं देना है. देन फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख द टैक्स विल बी 5%. देन 5 लाख टू 7.5 लाख it will be 10%. From 7.5 lakh to 10 lakh it will be 15%.
then 10 lakh to 12.5 lakh it will be 20%, then from 12.5 lakh to 15 lakh it will be 25%, and from 15 lakh above 15 lakh it will be 30%। ठीक है जी। 2021 के बाद जिस किसी व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल होती है, he has two options. One, he can give the income tax to the government on his income according to the old regime. One, secondly, now he has the option, अब वो income tax pay कर सकता है according to the new regime, right? और ये work ऐसे ही करेगी, है ना। Take the example of this only. देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 5 लाख तक के व्यक्ति को तो लेट अस से किसी व्यक्ति की आय अगर सालाना आय उसकी 4 लाख है, 4 लाख तक वो कमा रहा है, दैट मीन्स हमने पहले ही कह दिया कि 5 लाख तक तो हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, यानी 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। समथिंग दैट इज मोर देन 5 लाख नीड टू बी टैक्स्ड। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ओनली कि आपकी इनकम है 12 लाख, तो सेम पहले 2.5 लाख पे अकॉर्डिंग टू दिस कोई टैक्स नहीं, ठीक है जी। उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 5 लाख से 7.5 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2.5 लाख, उस पे 10%, देन अगले 2.5 लाख पे 15%, अगले 2.5 लाख पे 20%, उसके ऊपर कितना 12.5, उसके ऊपर कितना 25%। सो दिस इज हाउ द इनकम टैक्स was now your income was being taxed. So you have two options, one is the old regime and other is the new regime. So what has been proposed in this year's budget is the change in this. So from the coming financial year you will not see this regime, you will continue to see this old regime, ये तो आपके पास है, this is in place, but the changes has been proposed to this regime, new regime, which was introduced after this 2021. So accordingly now we have a new regime that has been proposed in this year's budget. देखिए अब क्या होगा, अब कह दिया गया है कि ये जो वैल्यू थी पहले 5 लाख तक, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, अब इट हैज़ बीन रेज्ड टू 7 लाख, 7 लाख, यानी अब किसी व्यक्ति की इनकम अगर 7 लाख तक है या 7 लाख से कम है उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वन नाउ अब हमें देखना है कि ये इस पे क्या, ये जो स्लैब्स हैं जो न्यू रिजीम में थे, जो 2021 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसमें क्या चेंजेस है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, up to 3 lakh there is nil, no income tax, then 3 lakh to 6 lakhs it is 5%, then 6 lakhs to 9 lakhs it is 10%, then 9 lakh to 12 lakh it is 15%, then 12 lakh to 15 lakh it is 20%, and a person having the income above 15 lakh is 30%। तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ दिस विच परसेंटेज हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, न्यू रजीम में कौन सा दर, कौन सी रेट एप्लीकेबल नहीं होगी। सो यू कैन सी, you will not see this 25% in the new regime that has been proposed in this year's budget. तो अब ये 20% के बाद सीधा 30% लगेगा above 15 lakh. So this is how the income in India is taxed. So you have one option now, that is you can give the income tax under the old regime, and you can give the income tax also under the new regime. So this is the new regime. This has been discontinued. This will be discontinued. So the answer would be the 25% that has been excluded in the new regime, right? So this was it. Now the other question, consider the following statements. Surcharge is a tax imposed on the total income. Cess is imposed for some specific purpose. ठीक है जी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे दो टर्म्स को, वन इज सरचार्ज एंड अदर इज सेस। देखिए अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल टैक्सेशन,
या कन्वेंशनल टैक्सेस. कन्वेंशनल टैक्सेस मीन्स ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस, ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सम टैक्सेस, सम अदर टैक्सेस. वन इज सरचार्ज एंड अदर इज सेस. ये दो है, ये एक्सटर्नल टैक्सेस है, एक्स्ट्रा टैक्सेस है. दैट इज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल टैक्सेस. ठीक है जी. सरचार्ज हमने देखा, यहाँ पे स्टेटमेंट इज सेइंग सरचार्ज इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द टोटल इनकम. दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट. क्यों? देखिए हम समझते हैं. लेट अस से योर इनकम वाज 1000 एंड यू वर टैक्स्ड. आप पे इस पे इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने लेवाई किया, इम्पोज किया. लेट अस से आपका इनकम टैक्स बनता है 20 रुपीज़. यू आर अर्निंग 1000 एंड आउट ऑफ दैट योर इनकम टैक्स कितना बना? 20 रुपीज़. अब इस इनकम टैक्स पे जो टैक्स लगेगा फिर से हम उसको क्या कहते हैं? सरचार्ज. सो सरचार्ज इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स. सरचार्ज क्या है? इट इज टैक्स ऑन टैक्स. सो दिस इज सरचार्ज. सो सरचार्ज इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द टोटल इनकम. नहीं, ये है टोटल इनकम टैक्स, यानी और टोटल टैक्स जो आप टैक्स दे रहे हो 20%, उस पे ऊपर जो उसके टैक्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? सरचार्ज. नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेस. सेस इज इम्पोज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. यस, देखिए अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो सरचार्ज और सेस में, सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सरचार्ज एंड द सेस. देखिए सरचार्ज में गवर्नमेंट डू नॉट नीड टू गिव द रीज़न कि हम वो सरचार्ज क्यों लेवाई कर रहे हैं या क्यों इम्पोज कर रहे हैं. बट सेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज लेवाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. जैसे आप देखेंगे वेरियस सेसेस वी हैव, जैसे कृषि कल्याण सेस. दैट मीन्स ये किस लिए लग रहा है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, फॉर द एग्रीकल्चरिस्ट. एंड यू कैन से वी हैव एजुकेशन सेस. Then we have road and infrastructure cess. So जब सेस लेवाई करती है गवर्नमेंट, so they need to give the purpose, है ना. और जो इसका पैसा है that is primarily used for that purpose only. जो सेस से कलेक्शन करेगी गवर्नमेंट, let us say the government will be collecting the cess or the amount from by levying the let us say the education cess. तो वो सारा पैसा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट खर्च करेगी. So this is the difference between the surcharge and cess. The fundamental difference you should always remember is that यहाँ पे government do not need to mention that why, for what purpose they are imposing the surcharge, and surcharge is the tax on the tax. ठीक है जी. ये compute किया जाता है टैक्स पे टैक्स. और सेस क्या है? देखिए सेस को भी हम कंप्यूट तो करेंगे टैक्स पे. जो टैक्सेबल आपकी जो टैक्स हो गया है, दैट मीन्स द अमाउंट दैट हैज़ कम अप फ्रॉम द टैक्सेशन, उस पे लगेगा सेस भी. बट द डिफरेंस इज सेस लगता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट सरचार्ज एंड सेस. तो आंसर यहाँ पे होगा करेक्ट क्या है? 2. यस, दैट मीन्स सेस इज इम्पोज्ड फॉर सम specific purpose. This is incorrect because surcharge is imposed on the total taxed income, right? देखिए now the other question is arrange the following events in the chronology. अब हम इन events को इनकी happening date से समझेंगे और इनको chronology में arrange करेंगे. P. Chidambaram announces the launch of GST. Vijay Kelkar task force recommended the GST. Government introduced the 115th amendment bill for the GST which got lapsed. And the fourth statement, government introduced 122nd bill for GST. देखिए जब हम GST को देखते हैं तो हम देखेंगे the first thing that has happened regarding that is associated with the GST is this विजय केलकर टास्क फोर्स. जब भी टैक्सेशन हिस्ट्री की हम बात करते हैं, विजय केलकर जो कमेटी थी, टास्क फोर्स थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कब सेटअप की गई थी? 2004 में. एंड दिस इज़ द कमेटी दैट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड समथिंग लाइक GST, राइट. GST के बारे में इन्होंने कहा था पहली बार. द सेकेंड थिंग वॉज P. Chidambaram अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ GST. देखिए P. Chidambaram हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर 2006 में, this finance minister Mr. P. Chidambaram announces that we will introduce the system of GST,
राइट, पर वो हुआ नहीं था, बट he has for sure introduced, he has for sure announced that we will be starting something like GST. So this is in the year 2006. तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली इन दी year 2011 the UPA government came up with the 115th amendment bill. ठीक है, so the UPA government of 2011 came up with this 115th amendment bill to introduce the GST ecosystem in India, but that bill got lapse हो गया. Then finally in the year 2015 and 16 the NDA government introduced the 122nd bill for GST, and with this introduction, finally with the 101st Constitutional Amendment Act of 2016, the GST in India was introduced. So this is the last thing to happen. So answer would be 2004, then 1 P. Chidambaram 2006, then third the government introduced the bill. It has happened in the year 2011. Then the last thing that has happened, which can be marked as the beginning of the GST, is the 122nd bill, and act was 101st Constitutional Amendment Act. So this is a very vital information for the prelims. Ki GST is introduced by amending the Constitution by 101st Constitutional Amendment Act. So this was it. The other question: which of the following articles were added in the Constitution after the introduction of GST in India? देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि GST को जब इंट्रोड्यूस किया गया, so few things were added in the Constitution. So the GST's introduction amended the Constitution. देखिए Constitution में क्या क्या ऐड हुआ with the introduction of this 101st Constitutional Amendment Act of 2016. So हमें देखना है 246A, this is correct. 268A, this is incorrect. 269A, yes. 279A. So answer would be 1, 3 and 4. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड किया 246 पहले 246A, जिसने हमें बताया, देखिए होता क्या था, जो स्टेट्स है, स्टेट्स वेरियस स्टेट्स, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, वो जो स्टेट्स थी इससे पहले यानी बिफोर 2016 दे वर एबल टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन द गुड्स ओनली, गुड्स. दे वर नॉट एबल टू टैक्स द सर्विसेज, बट आफ्टर दिस 246A, now the states were given the power that they can impose the taxes both on the goods and the services. So ये था. और क्या बोला गया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कि वो इम्पोज कर सकती है क्या, इंटीग्रेटेड जीएसटी. दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी. जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी लेवाए कर सकती है पहली बात कौन, यूनियन. और आईजीएसटी क्या होता है, ऐसा टैक्स जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है. सप्लाई ऑफ गुड्स, जब भी इंटरस्टेट यानी स्टेट्स में आपस में जब सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो वहाँ पे आईजीएसटी लगता है और उसको यूनियन लेवाई कर सकता है. सो दीज वर द चेंजेस पुट अंडर 246A. सेकंड चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 269A. देखिए जो ये 269A दैट हैज सेड समथिंग लाइक जो आईजीएसटी होगा, देखिए लेवाई तो आईजीएसटी कौन करेगा, इम्पोज कौन करेगा, यूनियन. वी हैव सीन दैट इन 246A. बट जो इसके प्रोसीड्स होंगे, जो इसकी इन अर्निंग होगी, वो डिवाइड होगी किसके बीच, यूनियन एंड दी स्टेट्स. वो डिवाइड होगी यूनियन एंड दी स्टेट. ये किसने बोला, 269A में ऐड किया गया. देन one more thing, that is 279A. This was also added by the constitutional amendment, 101st constitutional amendment. So 279A provides for a body that is known as GST Council. एक body है that is known as GST Council. The provisions regarding GST Council was given in 279A. We will try to know more about this in the coming questions. So these are three things that were added through the Constitutional Amendment Act, that is 101st. So that is it.
The other question, GST is imposed on the production of all services except, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि GST ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे, गुड्स पे लगती है, बट इसमें से किस पे GST नहीं लगती? सो यहाँ पे आंसर होगा आपका अल्कोहल, अल्कोहल, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। देखिए हमें इसे समझना होगा कि in almost every goods and services you will see there is the GST. GST is the indirect tax that was introduced in the year 2016, जहाँ पे बहुत सारे जो indirect taxes होते थे prior to year 2016 they were subsumed, they were merged to form this one integrated taxation system that came to be known as the goods and services tax, that is GST। देखिए जब हम बात करते हैं GST की तो हमें देखना होगा exemptions कि GST सभी पे लगता है या some goods, some services are exempted। देखिए we have to be clear about few things under this। देखिए पहले हम देखेंगे we have something like nil rated। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन पे जो GST लगता है, रेट है वो कितना है 0%। दैट मीन्स इट इज 0%, यानी वो GST के एम्बिट में तो आते हैं ऐसे गुड्स बट दे आर आउट फ्रॉम दिस। अभी फिलहाल के लिए उन पे GST कितना है 0%। वो GST के एम्बिट में तो आते हैं बट अभी के लिए गवर्नमेंट हैज़ पुट देम अंडर विच रिजीम दी 0%। जब हम देखते हैं इंडिया में जो GST लगता है, देखिए वो जनरली 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और 28% होता है। सो वी हैव हेयर दोज गुड्स विल बी कवर्ड जिन पे GST अभी के लिए कितना रखा है हमने 0%। उनको हम क्या बोलेंगे, निल रेटेड गुड्स। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ग्रेन्स, राइट, जैसे ग्रेन्स देखेंगे आप, सॉल्ट फॉर दैट मैटर एंड जैगरी, ये गुड़ वगैरह, यहाँ पे आप किस पे रखेंगे इसको, निल रेटेड। ठीक है जी। इसके अलावा वी हैव समथिंग लाइक एग्जेम्प्ट, जिस पे हमने कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, राइट, जहाँ पे दे आर नॉट अंडर GST, राइट। सम ऑफ द गुड्स हेयर जिस पे हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी अभी के लिए हमने उन पे GST माफ कर दिया है, हमने उन पे, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें डिफरेंस समझिए, यहाँ पे GST तो है पर कितने रेट पे है, 0% पे, यानी कभी भी ग्रेन्स को, सॉल्ट को, जैगरी को GST इन पे लिया जा सकता है विद द माइनर चेंजेस। दैट मीन्स दे जस्ट हैव टू बी kept under one of the already existing regime। ठीक है जी। पर अभी के लिए हमने उनको फिलहाल 0% में रखा है, दैट इज निल रेटेड। फिर एग्जेम्प्टेड में कि अभी उन पे GST लागू ही नहीं है, हम GST ले ही नहीं रहे। यहाँ पे आप देखेंगे दी गुड्स लाइक मिल्क है, आपके फ्रेश फ्रूट्स है, देन यू हैव कर्ड, राइट। सो दीज थिंग्स हैज़ बीन, यानी इन पे कोई भी GST नहीं लग रहा। दीज आर अट्रैक्टिंग नो टैक्सेस व्हाटसोएवर। फिर वी हैव समथिंग लाइक नॉन GST। देखिए यहाँ पे GST, दीज प्रोडक्ट्स, दीज गुड्स आर आउट फ्रॉम द GST परव्यू। These are out from the GST purview, यानी ये GST लॉ के बाहर है। यहाँ पे गुड्स लाइक अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और दी पेट्रोलियम और एनी ऑफ दी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कैरोसिन, वो हमने यहाँ रखा। देखिए अब वी हैव टू बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। देखिए यहाँ पे अल्कोहल, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल पे हम GST नहीं ले रहे, दैट मीन्स, दैट डज नॉट मीन कि अल्कोहल पे कोई और टैक्सेस लागू नहीं होते। अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे केवल GST लागू नहीं हो रहा, बट इस पे इसको टैक्स करने का एक अलग सिस्टम है। हम देखेंगे अल्कोहल पे लगता है जैसे द एक्साइज ड्यूटी, यानी उसकी प्रोडक्शन पे, प्लस वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट्स करती है। Any company, let us say, is producing the alcohol for the human consumption, उस पे excise duty लगाएगी central government, यानी excise duty is also a type of indirect tax, but it is other than the GST।
ये लग गया। साथ में इस पे वैट लगाया जाएगा स्टेट्स द्वारा। व्हेन इट विल बी द अल्कोहल विल बी कमिंग इनटू द स्टेट्स, तो स्टेट्स अपने हिसाब से उस पर स्टेट वैट लगाएगी, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और पेट्रोलियम पे भी द रिजीम इज सेम, इस पे भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, राइट। सो जीएसटी इन पे नहीं लग रहा, बट इट इज अट्रैक्टिंग अदर टैक्सेस लाइक ईडी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, वैट। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये वह गुड्स है जिन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, जीएसटी तो नहीं लग रहा, दैट इज क्लियर, जीएसटी हैज बीन एग्जेम्प्टेड इन दीज प्रोडक्ट्स, बट इसके अलावा कोई और टैक्स भी नहीं लग रहा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, राइट। अब इसके अलावा हम देखेंगे वन मोर थिंग, दैट इज जीरो रेटेड। अब ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, ये वह प्रोडक्ट्स है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है, उनको हम किस पे रखेंगे? ज़ीरो रेटेड पे। देखिए, इसको अब और अच्छे से समझेंगे जब हम देखें नील रेटेड में। तो मैं एक चीज़ नील रेटेड में आई वुड लाइक टू राइट, दैट इज़, अगर मैं नील रेटेड में आई वुड राइट नो ITC, दैट इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट? देखिए, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा सिस्टम होता है विच इनेबल्स द बिजनेसेस, या जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको इनेबल करता है किस चीज़ के लिए? टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे आई हैव रिटन नो ITC, दैट मीन्स यहाँ पे यू कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे आई वुड राइट इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम समझेंगे जब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट, as I have told you, it is the system which enables the businesses to reduce their tax liability. Let us take the example. आपने input आप समझेंगे कैसे? raw material से। input means the raw material that is required to make the finished goods. आपने raw material लिए कितने के? 10,000 रुपए के। you are producing anything, any goods, तो आपने रॉ मटेरियल आपको पड़े ₹10,000 के। सो इस पे आप जीएसटी दोगे, ऑफ कोर्स कितना? 18%। लेट अस टेक द एग्जांपल। तो जीएसटी कितना हुआ आपका? 18%, सॉरी 1800। देन आप इस इनपुट की मदद से, यानी इस रॉ मटेरियल की मदद से यू विल मेक द फिनिश्ड गुड्स, यू विल मेक द फिनिश्ड गुड्स। लेट अस से फिर आपने उसको कितने में बेचा? 15,000 में। हेयर यू विल कलेक्ट दी जीएसटी, जो खरीद रहे हैं उससे आप जीएसटी भी कलेक्ट करोगे, उसको भी लेटर से आप 18% के हिसाब से करोगे, देन इट बिकम्स 2700। ठीक, नाउ आपने जीएसटी पे किया 1800 यहाँ पे वाइल यू वर परचेजिंग दी रॉ मटेरियल। यहाँ पे व्हेन यू आर सेलिंग द फिनिश्ड गुड आपने 2700 जीएसटी कलेक्ट किया। नाउ यू हैव 18%, 2700, 2700। अब आपको पे करना है जीएसटी गवर्नमेंट को। अब आप कितना करेंगे? यू विल पे 2700 और 1800। You will pay 2700 minus 1800, that is 900. This system is known as input tax credit. क्योंकि यहाँ पे आपने जीएसटी पे कर दिया था, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा थ्रू दिस सिस्टम दैट इज़ नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, अब अगर आपके कोई ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स है, सर्विसेज है, वहाँ पे आपको आईटीसी ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने कुछ चीज़ खरीदी पहले, एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड बनाने के लिए आपने पहले कोई चीज़ खरीदी, उस पर तो आपने जीएसटी दिया, बट जब आप एक्सपोर्ट कर दोगे उसको आप फिर कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सपोर्ट आइटम्स पे तो जीएसटी नहीं लग रहा। सो हाउ कैन यू रिकवर दैट GST that you have paid for the input goods? तो आपको यहाँ पे you can reimburse it, you can make them reimburse through this that is known as input tax credit. So these are the 4 things. This is the exemption system under the GST. One is nil rated, exempted, non-GST and the zero rated. Okay. The next question.
GST Council is a statutory body. Prime Minister is a chairperson of GST Council. To pass any proposal, a minimum of 3/4 votes are required in the favor of the proposal. देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है about the GST Council. In the other question, we have seen that GST Council, it is a statutory or a constitutional body. It is a constitutional body. Under which article? Constitutional body under which article? Article 279A. 279A, that was added through 101st Constitutional Amendment Act 2016, right? ठीक है जी. So the first statement, it is a statutory body. No, it is a constitutional body. Second is Prime Minister is the chairperson of the GST Council. No, who is the chairperson? It is the Union Finance Minister, वित्त मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे. अब हम वी शैल ऑल्सो सी कॉम्पोजिशन. देखिए जीएसटी काउंसिल का काम एक्चुअली क्या है. देखिए जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स ऑन द रेट्स एट विच द जीएसटी विल बी चार्ज्ड एंड इट फैसिलिटेट्स all the decisions that is taken and that is important for the imposition of the GST. ये सभी कौन करता है? GST काउंसिल. हमने देख लिया GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 279A के तहत. दूसरा इसकी चेयरपर्सन रहते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर. तीसरा हम देखेंगे कॉम्पोजिशन. अभी के लिए एज ऑफ नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ GST काउंसिल इज 33 लोग हैं इसमें. 2 आपके हैं जिनको हम कहेंगे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 31 आर फ्रॉम दी स्टेट्स, यानी स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स. अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. 2 यूनियन से कौन है? एक तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर हु इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर. दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज also the finance minister of state finance, ये भी है, they are from the center. and यहाँ पे 31 कैसे हुए? 28 states plus 3 UTs having the legislature. so किन UTs के पास legislature है इंडिया में? one is Delhi, other one is Puducherry and other one is J&K. The UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh is having the combined legislature. तो ये हो गए आपके 31st. तो स्टेट्स से कौन रिप्रेजेंट करता है जीएसटी काउंसिल को? दी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट्स. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट्स, राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वह. सो 31 हेयर एंड 2 हेयर. सो टोटल यू हैव 33 मेंबर्स इन दी जीएसटी काउंसिल. एंड so this is incorrect, this is finance minister. Then to pass any proposal minimum 3/4 votes are required in favor of the proposal. देखिए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. अगर let us say GST council has to decide on something, now they will do it by way of voting. so all in all they are कितने? 31 plus 2, they are total 33. अभी के लिए कितने हैं जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स? 33. अब ये डिसाइड कैसे करेंगे? दे विल डिसाइड ऑन दिस रेशो. 3/4 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर डिसाइडिंग बाय द जीएसटी काउंसिल. यानी आउट ऑफ 33 एटलीस्ट 3/4 पीपल, इफ दे आर सेइंग यस और इफ दे आर सेइंग नो, दैट विल बी एक्सेप्टेड. इट विल बी नियर अबाउट 20. अगर 33 में से 25 व्यक्ति हाँ कह रहे हैं तो हाँ होगा, 25 ना कह रहे हैं तो ना होगा रिगार्डिंग एनी डिसीजन. सो 3/4, यस, दिस इज करेक्ट. सो आंसर वुड बी दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज 3 ओनली इज द करेक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्मुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Second, it recommends the distribution between union and states of net proceeds of taxes and allocation between these states. हमसे यहाँ पे पूछा गया है about Finance Commission of India. तो Finance Commission of India
पहली बात, इज दिस अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इज दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इट इज बाय फार अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 280। देखिए 5 साल में एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 1। सो यहाँ पे इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्मुलेटेड बाय प्रेसिडेंट। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, इट रिकमेंड्स, यानी उसका काम क्या है? काम देखिए, अगर हम बात करें द वर्क of the FCI or the function that is usually discharged by the Finance Commission of India. So हम देखेंगे Finance Commission of India को basically 2 काम दिए जाते हैं। पहला about the net proceeds। देखिए यूनियन जो गवर्नमेंट है वो कुछ अर्न करेगी by way of taxes। You shall know that taxes becomes the very significant part of the income that is earned by the government, both at the union level as well as the state level governments. तो union government you will see has earned some taxes. अब क्या वो taxes किस ratio में states को भी दिए जाए? That means the income that has been generated by the union government through the taxes, it shall also be given to the states. किस basis पे दी जाए वो कौन decide करेगा? The Finance Commission of India. और इसको हम कहते हैं, it is known as the vertical distribution. Vertical distribution. तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। तो अभी हम देखेंगे वी हैव 15th फाइनेंस कमीशन, यानी 15th टाइम द प्रेसिडेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द फाइनेंस कमीशन। जो अभी चल रही है दैट इज द 15th फाइनेंस कमीशन। तो हम देखेंगे 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट out of all the proceeds, यानी out of all the income generated through the taxes by the union government, 41% of the taxes shall be distributed among the states, right? So 41% shall be distributed among the states. इसको हम कहते हैं vertical distribution, right? Vertical distribution यानी it is coming from the union government to the state governments. This is known as the vertical distribution. देखिए एक तो ये काम है, दूसरा अब states को 41% देना है, but you see हर एक स्टेट को सेम टैक्सेस तो नहीं मिलेंगे, हर एक स्टेट को सेम अमाउंट तो नहीं मिलेगा। सो दैट इज डिसाइडेड थ्रू वन मोर वे दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स यू हैव मेनी स्टेट्स कि एचपी को कितना दिया जाए, लेट अस से सिक्किम को कितना दिया जाए, पंजाब को कितना दिया जाए, हरियाणा को कितना दिया जाए, इसको डिसाइड किया जाएगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द रिकमेंडेशन गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड दे आर रिकमेंडिंग दैट थ्रू दिस सिस्टम दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो दीज आर टू थिंग्स that two functions actually that is discharged by the Finance Commission of India. So yes, so this it recommends the distribution between the union and states of the net proceeds of the taxes and allocation between the states. This becomes the correct statement. So correct is both 1 and 2. Both are correct. Now coming on to the other question, how does the Finance Commission distributes the share to the states? देखिए ये क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है लास्ट क्वेश्चन के, कि जो फाइनेंस कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैंने आपको बताया समथिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन entails that which state shall get how much of amount from the union, right? So it is decided on the formula. देखिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इनकम डिस्टेंस. इनकम डिस्टेंस के हिसाब से वी विल डिस्ट्रीब्यूट 45% ऑफ द फंड. फिर वी विल सी द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. पॉपुलेशन, इसके हिसाब से वी विल डिस्ट्रीब्यूट 15%. फिर यू हैव एरिया ऑफ द स्टेट, इसके हिसाब से भी 15%. देन यू हैव डेमोग्राफिक
डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दैट इज, इसके हिसाब से हम करेंगे 12.5%। इसके बाद यू विल सी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसके हिसाब से 10%। देन इन द लास्ट इट इज टैक्स एफर्ट्स, इसके हिसाब से 2.5%। ठीक है जी। सो व्हेन इट कम्स टू द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मीन्स कि किस स्टेट को कितना अमाउंट दिया जाए आउट ऑफ द टोटल नेट प्रोसीड्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट। पहली कंसिडरेशन में चीज़ ली जाएगी इनकम डिस्टेंस, यानी यहाँ पे इनकम डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेट विच इज़ हैविंग द बेस्ट पर कैपिटा इनकम। ऐसी स्टेट जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरी स्टेट से, राइट। सो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा, लेट अस से इट इज़ हिमाचल प्रदेश, जिसकी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। हम बाकी स्टेट्स को वाइल वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड्स वी विल कंपेयर द अदर स्टेट्स फ्रॉम दिस, राइट। तो हम देखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि द पुअरर स्टेट विल गेट मोर फंड्स, दिस इज ऑब्वियस, दिस इज एविडेंट कि जो पुअरर स्टेट होगी उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। पुअरर इन टर्म्स ऑफ द इनकम, है ना, जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। सो 45% वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेटेज हम देते हैं इनकम डिस्टेंस को। सेकेंड इज पॉपुलेशन, यानी जो ज़्यादा पॉपुलस होगी उसको ज़्यादा फंड्स मिलेंगे। एरिया, जिसका ज़्यादा एरिया होगा उसको ज़्यादा फंड्स मिलेंगे। सो वेटेज हम दे रहे हैं 15% एरिया और पॉपुलेशन के लिए। देन यू हैव डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में हम देखेंगे कि द स्टेट विच आर यू नो बिकमिंग वेरी गुड, डेमोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग बन रही है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स वहाँ की सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ गुड कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। वहाँ पे हम डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को वेटेज देंगे 12.5%। अदर इज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ऐसी स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, उसको भी हम वेटेज देंगे कितनी, 10%। दे विल गेट दी मोर अमाउंट। देन इन द एंड टैक्स एफर्ट्स को हम देंगे 2.5%। दैट मीन्स जो ऐसी स्टेट्स है जिनकी लेट अस से जीएसटी कलेक्शन या वहाँ से इनकम टैक्स कलेक्शन इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, तो वहाँ पे हम उसको वेटेज देंगे 2.5%। सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। सो दैट इज़ all for this video, and I hope that this kind of initiative is benefiting you. So keep watching. We'll be coming up with the same content. So thank you so much, and do subscribe and share. Namaskar.